A big hello and a warm welcome to all our viewers once again to the highlights package of the 12th South Asian Games being held in Guwahati and in Shillong. This is day 11. How has it been till day 10 for India? India ended day 10 with a whopping number of 157 gold medals, and the medal tally remains something of an academic interest. But day 11 is very crucial given the fact that a lot of events will have its final round. And if you are a fan of an India-Pakistan encounter, this is a perfect day for you because we have the Kabaddi and the handball, both in men's division, India taking on Pakistan. Of course, it's a big day for the footballers as well. Indian women take on the Nepalese women in the women's football final, and the men's football team take on the Nepali men. All happening today, so everything to look for. Let's go across and see the highlights. भारत के अक्षय और जिस खिलाड़ी का निशाना 9.7 के ऊपर या उससे बाद में लगेगा तो उसको काउंटिंग में लिया जाएगा। विजय कुमार, ये लाल रंग का संकेत, और जैसे ही हरी लाइट जलेगी ये 5 शॉट उनके और 5 में से 3 यानी कि 9.7 ये पाकिस्तान के बशीर मुस्तफा। तो काफी कलिस्ट है इसकी स्कोरिंग, लेकिन फिर भी रोचकता बनाए हुए। बशीर 3 hits. So gold, silver and bronze between these three, and the next one to be eliminated will be the bronze medalist. Oh, he's got only 2, has Vijay Kumar. So he goes up to 23. The next one to fire would be Bashir. There he is on the screen. Oh, he's got a 3. So he goes up to 22. And Gurpreet, one Indian faces an elimination. As of now, it seems to be Vijay Kumar, who would have to be content with a bronze in case he's eliminated. Oh, he shot a 4 and he goes up to 24. And here Vijay Kumar gets eliminated. So Vijay Kumar of India now has settled for the bronze. So you have Bashir there concentrating hard. The screen at the bottom shows the targets, and as soon as the light turns green, he will shoot. There's Gurpreet at the back. You can see his back towards us with India emblazoned on it. Oh, Bashir has shot a 2. So he ties up otherwise with Gurpreet at 24. So if Gurpreet shoots even 1, he gets the gold. Gurpreet of India with a chance of scoring the gold even if he shoots 1. There he goes. He's got 3 and he's got the gold. He's got the gold. In fact, he's got 4. So he's got the gold with a very handsome lead of 4 points. नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये 2016 का दक्षिण एशियाई खेलों के अंतर्गत जो विजय कुमार इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है यहाँ पर। and the champion and the winner of gold medal,
Gurpreet Singh, India. फायर पिस्टल पुरुषों की स्पर्धा में और इस तरीके 10 मीटर्स का ये मुकाबला। जो टारगेट का डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है। लगातार भारतीय खिलाड़ियों का शूटिंग में उम्दा प्रदर्शन और भारत का वर्चस्व यहाँ पर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर श्वेता सिंह और उनके पीछे हैं सिद्धू हिना और ये हैं श्रीलंकाई खिलाड़ी श्वेता सिंह, जिन्होंने कि 2014 में एशियाई खेलों में एयर पिस्टल में रजत पदक दिलवाया था। One more elimination and then you'll have the 3 medal winners. Now the next 2 shots are going to decide the bronze medalist. There she goes. Asha Armin is eliminated. She Competition joins shot load. the ranks of those who are eliminated, and therefore all the 3 Indians are left now. Shweta Singh, Hina Sidhu and Yashaswini Deswal. Now the next one who gets eliminated, Rakesh, becomes the bronze medal winner. And then there will be a shootout between the remaining 2 for the gold and the silver. So Hina Sidhu has come with a tremendous shot of 10.2, Deswal 10.0. And Shweta Singh now builds up the lead at 10.5. So Shweta Singh has come up with 9.9. Deswal with 10. Sidhu with 8.8. Let us see the total. Oh, Hina Sidhu, Shweta Singh. After 18 shots, Shweta Singh is leading 175. While Deswal should now be the last. On second position is Hina Sidhu. So she gets the bronze. 3.3. On third position in the bronze medalist is Yashaswini Deswal of India with a score of 1.3. Well done, Yashaswini. But the good news is that she's got a bronze. For the next She should competition be shot happy at the load. age of 18 when she is making the transition from the junior ranks to the senior ranks, that she's got a bronze Stop. for India, and is now to the last shot as to who's to get the gold and who's to get the silver. Both the players, both the shooters are in. For Hina Sidhu, I think she has spoiled her chances. Let's just see Shweta. Shweta is coming with 8.3. It's a question of nerves. You can see nerves at play, but still Shweta Singh of India, who is edged out Hina Sidhu of India. Here she is. Shweta with the gold. Hugged by Yashaswini. And that's Hina in the middle with the silver. So it's again a case of clean sweep for India, with Shweta Singh of India bagging the gold at 194.4. 10 मीटर एयर पिस्टल महिलाओं का ये मेडल वितरण समारोह। In the 10 meter यशस्विनी air देशवाल, pistol women जो कि चंडीगढ़ से individual है, event, the winner of bronze medal, Yashaswini Singh Deswal from India. वर्षीय चंडीगढ़ की यूथ ओलंपिक मैजिंग में छठे स्थान पर रही और यहाँ पर 2014 में और यहाँ पर 2016 में ये रजत कांस्य पदक प्राप्त करते हुए दक्षिण एशियाई खेलों की 10 मीटर पिस्टल इवेंट में। In second position, the winner of silver medal, Hina Sidhu from India. और भारत की पटियाला की 91.5 अंकों के साथ रजत पदक प्राप्त करते हुए
साथ में अतिथियों द्वारा सम्मान इस पोडियम पर अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ये बुके और असमी स्वाफी गमछा जिसे कहते हैं, और ये हिना सिद्धू। And taking the top position, the winner of gold medal in the 10-meter air pistol women individual event is Shweta Singh from India. करेगी और यहाँ पर ये स्वर्ण पदक विजेता भारत की खिलाड़ी वहां पर पहुंची हैं, श्वेता सिंह, 29 वर्षीय, 194.4 अंकों के साथ। बहुत ही गौरव का विषय, हर्ष का विषय। उन्होंने भारत को आगे से आगे ले जाने में बहुत सफलता प्राप्त की है और यहाँ पर ये स्वर्ण पदक प्राप्त for all the ace shooters, women shooters, a huge round of applause. 50-meter rifle 3 position men final. आपको एक बार इनके सीक्वेंस बता दें तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो रेड जैकेट में ये एच फायरिंग पॉइंट पर हैं। ये हैं पाकिस्तान के उमार सिद्दीकी। जस्ट उनके पीछे आप देख सकते हैं श्रीलंका के कृष्णनंथा WKY। उनके पीछे गगन नारंग हैं भारत से। उन्हीं के साथ ई लाइन में चयन सिंह भारत से। चयन सिंह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चयन सिंह के साथ ही डी में है सुरेंद्र सिंह राठौड़ भारत से। आप देख सकते हैं ये श्रीलंका के कृष्णन था। ये गेम बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ खेली जाती है। इस खेल का रोमांचक भाग यही है कि इस खेल में आप फिजिकली कितने फिट हैं इस पर निर्भर नहीं होता है, जबकि इस पर निर्भर होता है कि आपकी माइंड से आप कितने फिट हैं, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल आपका कितना बढ़िया है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं सीरीज 1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पर चयन सिंह है भारत से, दूसरी पोजीशन पर है कुमार HTP श्रीलंका से। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये चेंज ओवर शुरू हो गया है। आखिरी सीरीज कंप्लीट हो गई है प्रोन पोजीशन की। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पर ये आखिरी पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन। ये पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन है। इसमें 2 सीरीज खेली जाएंगी, 5 शॉट्स ईच सीरीज, और उसके बाद से एलिमिनेशन शुरू किया जाएगा। सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और इस सीरीज में भी नंबर 1 पर है चयन सिंह भारत से, नंबर 2 पर है गगन नारंग, नंबर 3 पर है श्रीलंका के समारुकीन और नंबर 4 पर है उमार सिद्दीकी। यानी कि 5वें नंबर पर है उमार सिद्दीकी और अब अफसोस इन्हें एलिमिनेट होना पड़ेगा। और 4th पोजीशन पर हैं बांग्लादेश के सिपलू। अब एक एक शॉट से एक एक खिलाड़ी एलिमिनेट होता हुआ। बहुत ही दिलचस्प खेल, लोगों में काफ़ी उत्साह, अपने अपने खिलाड़ी को चीयर करते हुए, अपने अपने देश को चीयर करते हुए। कभी हताश होते हैं, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। मेरे भी आसपास जितने भी प्रशंसक बैठे हैं वो अपनी अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट है, नंबर 1 पर है चयन सिंह भारत से, नंबर 2 पर है गगन नारंग भारत से, नंबर 3 पर श्रीलंका के समारकून और नंबर 4 पर है बांग्लादेश के सिपलू। ब्रोंज मेडल जाता है श्रीलंका के समारकून को। आपके सामने गगन नारंग और चयन सिंह। गगन नारंग दूसरी पोजीशन पर। ये आखिरी शॉट है और इसके बाद गोल्ड की घोषणा की जाएगी। कम अंकों वाला सिल्वर विजेता होगा। फाइनल्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मैन का ये आखिरी शॉट काइलीपारा शूटिंग रेंज से आप देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पर। लोगों में उत्साह और इसी के साथ हमारे पास गोल्ड मेडल विजेता हैं चयन सिंह भारत से और सिल्वर गया है गगन नारंग भारत से।
second position, winning the silver medal, Gagan Narang, India. Champion of 50-meter rifle 3 positions men individual event, Chain Singh, India. Ladies and gentlemen, a big round of applause for all the shooters. Talent of immense patience, precision, calm, yet very sharp mind. The achievement of the shooters. The celebration is on. Ladies and gentlemen, a big... विमेंस कैटेगरी अंडर 62 केजी, जहां पर आयशा शाकिया नेपाल की और मार्गरेट रेगी भारत की, इनके बीच में ये संघर्ष भारत और एक स्वर्ण पदक की तरफ देखना है कि अग्रसर होता है या नहीं। जहां पर मार्गरीटा रेगी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों मुकाबले जीते थे, उसी तरह से आयशा शाकिया ने भी अपने मुकाबले जीते। छोटे कद के 1 अंक अर्जित करते हुए यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी मार्गरीटा रेगी, 1-1 अंक दोनों खिलाड़ियों का। पहले दौर का, पहले राउंड का, पहले मिनट का खेल चलता हुआ। आयशा शाकिया नेपाल की बहुत फुर्तीली, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय की मार्गरीटा रेगी ये भी बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने पहले 2 मुकाबले जीते, पूरी उम्मीद है यहाँ पर कि भारत को और एक स्वर्ण पदक यहाँ मिले। लेकिन आयशा शाकिया जो कि छोटे कद की हैं लेकिन ऊंचे स्ट्राइक्स लेती हैं, ऊंचे 3 पॉइंटर्स लेती हैं, उससे बचना होगा ऊंचे कद की खिलाड़ी मार्गरीटा रेगी को। फिलहाल 1-1 अंक, स्टांस बदलते हुए दोनों खिलाड़ी 55 सेकंड का वक्त बकाया इस पहले राउंड में। 1-1 अंक के साथ बराबरी, अभी तक खिलाड़ी ओपन नहीं हुए हैं। Hit. Let's see in whose favor will that kick come in. Both of them looking strong, and there we could see one hit, and that's it. That would be the end of the match. Aisha from Nepal and Latika and Margareta from India making a move that will give them the gold medal. It is a crucial juncture, very tight contest. Both of them waiting, looking, not taking any chances. Concentration at its peak. And you could see Margareta of India won this gold medal in the golden strike. What a victory, what a win for her. That is the champion of India, Margareta Riga. Ladies and gentlemen, that is the start of the
Men under 80 kilogram category final. Navjeet Man of India up against Saksham Karki of Nepal in the red chest guard. Both the fighters are ready. The battle is about to begin. Ganpati Bappa Memorials chanting in the air by the Indian supporters. Both the fighters have really shown their class in the previous bout. Will be good to see what they have in offer for this one. If they can bring in with some surprises, it will be a display of sorts. Fighters looking strong, confident, and there we could see Navneet Man flying up in the air, going for that three-pointer. What a strike, what a kick, earning him that coveted first 3 points, putting him in the lead against his Nepali counterpart, Saksham Karki. भारत माता की जय के नारे बुलंद होते हुए नेग्रिम्स इंडोर स्टेडियम शिलांग में 7-0 की बढ़त, 15 सेकंड का वक्त। ऊंचे कद के नवजीत मान 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस तरह से स्वर्ण पदक की प्राप्ति की भारत के नवजीत मान ने। बहुत ही बेहतरीन जीत सक्षम कारगी जैसे खिलाड़ी के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। दूसरी स्वर्ण पदक की कमाई यहाँ पर भारत ने की है। मेल कैटेगरी अंडर 80 kg फाइनल नवजीत मान गोल्ड मेडलिस्ट। We have the men's light flyweight 46 to 49 kilograms. India taking on Pakistan, and L. Devendra Singh of India. Such a medal prospect. He has done India proud over the years, and he is taking on Mohammad Ullah of Pakistan. पाकिस्तान और भारत के मध्य चलता ये मुकाबला पहला चक्र है। मोहम्मद उल्लाह दोनों ही मुक्केबाज काफी अनुभवी। पाकिस्तान के खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अपने देश का। बेनजीर भुट्टो वर्ष 2012 प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, राष्ट्रीय चैंपियन है। बहुत ही सुंदर प्रहार एल देवेंद्र सिंह का, अपने को स्लिप करके बचा, राइट क्रॉस लगाया इस हाथ में, नजदीक में शॉर्ट राइट हुक एल देवेंद्र सिंह का। अगेन दोनों हुक का अच्छा इस्तेमाल किया एल देवेंद्र सिंह, नजदीक जाकर दोनों हुकों का अच्छा इस्तेमाल। और संजीव भी देखे अभी इस के मुकाबले में एल देवेंद्र सिंह का ज्यादा अटैक है बनिस्बत पाकिस्तान के मोहम्मद उल्लाह के। संजीव, सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ब्लाइंडली आगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा नीचे झुक जाते हैं, जिस वजह से उनको नुकसान है। यहाँ पर तीसरा और अंतिम चक्र, निर्णायक चक्र समाप्त हो चुका है। यहाँ पर देखना होगा, अंकों के आधार पर निर्णय होगा। एल देवेंद्र सिंह जिनको विजेता घोषित किया गया है, घोषणा हो चुकी है। दर्शकों में हर्षोल्लास पूरी तरह से। L. Devendra Singh of India winning the gold medal.
in the light flyweight 46 to 49 kilogram category. Wonderful moment for L. Devendra Singh, who has done the country proud in so many events. L. Devendra Singh of India, the gold medalist. सैयद मोहम्मद आसिफ रेड कॉर्नर से और ब्लू कॉर्नर में है मदन लाल भारत के। दोनों मुक्केबाजों को रेफरी ने रिंग के मध्य बुलाया और उनको समझाया कि अपन सीधा खेलें, होल्डिंग ना करें। और मदन लाल भारत के दोनों ही मुक्केबाज तैयार, पहले राउंड और फाइनल चक्र का मुकाबला। और ये मुकाबला आरंभ हुआ। देखते हैं विजय सीरी किसके पक्ष में जाती है। दोनों ही मुक्केबाज काफी बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस मदन लाल द्वारा। मदन लाल अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के से थोड़े हाइट में छोटे हैं, इसलिए उनको नज़दीक जाकर खेलना होगा और उसका वो पूरा प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा अटैक पाकिस्तानी मुक्केबाज द्वारा, जिसको शेल गार्ड करके अपने को बचाया और अच्छा क्रॉस दिया काउंटर मदन लाल ने। पूरा गार्ड रखा हुआ है, उनको पता है कि उनके प्रतिद्वंदी उनसे लंबे हैं, इसलिए उनको पूरा गार्ड रखना होगा। और उसका बहुत ही अच्छा 1-to-1 3 पंजों कॉम्बिनेशन लगाया मदन लाल। बहुत अच्छा राइट अपरकट, राइट क्रॉस, अच्छा डबल राइट का कॉम्बिनेशन लगाया मदन लाल ने। पूरे गार्ड का जैसे ही उनका गार्ड खुला पाकिस्तानी मुक्केबाज का, उसका पूरा फायदा उठाया मदन लाल ने। 1-to-1 का 3 पंजों कॉम्बिनेशन अच्छा लगाया। नियमन विरुद्ध बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस लगाया इस बार पाकिस्तान मुक्केबाज ने मदन लाल के। लेफ्ट स्ट्रेट मदन लाल फुटवर्क करते हुए वीव करके अपने को बचाया। मदन लाल फुटवर्क के साथ अनुभव का पूरा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकाबला उनके पक्ष में है, स्वर्णिम सफलता उनको मिल चुकी है, इसलिए कोई अधिक जोखिम न उठाते हुए सुरक्षित खेलते हुए दूर दूर से पाकिस्तानी मुक्केबाज को किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दे रहे। मदन लाल अच्छा वीव करके बचाया अपने को। नजदीक में क्लिंचिंग किए हुए दोनों एक दूसरे को, जो कि नियमों के विरुद्ध है। अच्छा राइट वन हुक, बहुत ही अच्छा 4 पंजों कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट स्ट्रेट और राइट अपरकट लेफ्ट हुक कॉम्बिनेशन लगाया था मदन लाल ने। अगेन लेफ्ट स्ट्रेट राइट हुक, बहुत ही जोरदार प्रदर्शन मदन लाल द्वारा। पूरी तरह से हावी हैं अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के मुक्केबाज पर। सैयद मोहम्मद आसिफ पर दोनों को मदलाते हुए मुकाबला आरंभ किया। अच्छा वीव करके राइट क्रॉस का काउंटर किया मदन लाल। अगेन लेफ्ट राइट स्ट्रेट और ये सेल गार्ड नजदीक चले गए और ये तीसरा अंतिम चक्र समाप्त। दोनों मुक्केबाजों ने हाथ उठाकर उसको अभिनंदन स्वीकार किया। दोनों ही मुक्केबाज और ये मदन लाल को विजेता घोषित किया। स्वर्णिम सफलता भारत की, दूसरा स्वर्ण भारत के पक्ष में। And been a very good support for boxing on all days of competition. This is the penultimate day. Finals in 7 categories of men. And the proud winner, the gold medalist in the flyweight 52 kilogram category. Well, the bout has just begun here. The bantamweight 56 kilogram Ruwan Thilina versus Shiv Thapa of India. Vimal Singh Khatri is alongside me. Vimal, again Shiv Thapa, a very strong contender here. यहाँ किशोर शिवा थापा यहाँ फेवरेट हैं और इस भार वर्ग के सबसे प्रबल दावेदार हैं। करंट अमेजिंग चैंपियन भी हैं वो। बहुत ही अच्छा अनुभव का है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले को उनकी हाइट भी ज़्यादा है, जिससे वो दूर दूर से खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लेफ्ट हुक, स्टेप बैक करके अगेन लेफ्ट हुक, राइट क्रॉस, बहुत ही ताकत राइट क्रॉस था। लेफ्ट सेट दूर दूर से खेलते हुए शिवा थापा सेल गार्ड अपने बचाते हैं। बहुत ही अच्छा फुटवर्क, राइट लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, अगेन राइट क्रॉस, फिर लेफ्ट राइट 4 पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन। लेफ्ट स्ट्रेट दूर दूर से खेलते हुए। यह श्रीलंका के रेड कॉर्नर में WR थिलीना और ब्लू कॉर्नर में इंडिया के शिवा थापा, दोनों ही मुक्केबाज क्लिंचिंग पोजीशन में, जो कि नियमों के विरुद्ध है। दोनों को अलग करते हुए जापान के रेफरी पीछे स्टेप बैक, बहुत ही अच्छा राइट अपरकट लगाया।
किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दे रहे अपने प्रतिद्वंदी को। नजदीक जाकर शॉर्ट पंच और दूर होने पर स्ट्रेट पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन शिवा थापा, बहुत ही अच्छा रफ ठोक राइट अपरकट। नजदीक आने पे शॉर्ट हुकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अनुभव का पूरा फायदा लेते हुए शिवा थापा। काफी अनुभवी मुक्केबाज शिवा थापा, भारतीय मुक्केबाज। 2 स्वर्ण पदक अब तक भारत जीत चुका है। एल देवेंद्र सिंह जिन्होंने लाइट फ्लाई वेट में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, उसके बाद फ्लाई वेट में मदन लाल ने स्वर्ण पदक दिलाया। पाकिस्तान के ही खिलाड़ियों को, दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को प्राप्त किया। फाइनल में मुकाबला रहा और यह मुकाबला श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ। बैंटम वेट का 56 किलो भार वर्ग का पुरुष वर्ग का यह मुकाबला। और ये स्वर्ण पदक के विजेता शिवा थापा भारत के बैंटम वेट 56 केजी का से हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी हैं क्षेत्र के शिवा थापा। सप्रामुद श्रीलंका के मनोज कुमार, भारतीय मुक्केबाज, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है। और यह है श्रीलंका के खिलाड़ी गेंदू सप्रामर्दू। पहला चक्र भारत और श्रीलंका के मध्य चलता है ये मुकाबला। नजदीक आकर प्रहार किया मनोज कुमार ने स्ट्रेट जैब के साथ, मगर वहीं श्रीलंका के खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ लिया। मुक्के को पकड़ रहे हैं, रिच को उनको दबा रहे हैं, मगर अपरकट, 2 अपरकट और फिर राइट क्रॉस, बहुत ही सुंदर मनोज का। शेल गार्ड रखा हुआ है मनोज ने ऑन गार्ड पोजीशन में, बहुत जरूरी ऑन गार्ड पोजीशन किसी भी मुक्केबाज के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्लिप हुए श्रीलंका के खिलाड़ी, मुक्के के प्रभाव से नहीं गिरे हैं, स्लिप हुए, उनका बैलेंस नहीं बना, बहुत जरूरी हाथों पैरों का तालमेल बनाना। भारतीय मुक्केबाज बहुत ही आक्रामक। टाइम ब्रेक, डॉक्टर को बुलाया, चोट लगी है श्रीलंका के खिलाड़ी को, डॉक्टर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अपने को किसी तरह इस मुकाबले में रखे हुए हैं, पूरी तरह थके हुए दिखाई दे रहे हैं श्रीलंका के बाद। मनोज लगातार अटैक किए हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार से संभलने का मौका नहीं दे रहे। लेफ्ट हुक, राइट हुक, शॉर्ट पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन मनोज द्वारा, रिपीट हटकर पुनः लेफ्ट स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन। और एक असंतुलित होकर श्रीलंका के मुक्केबाज गिरे। बिंदु सप्रामुडू, मनोज कुमार रही आत्मसात धैर्य के साथ खेलते हुए स्ट्रेट बैक करके राइट अपरकट का काउंटर किया। तीसरा अंतिम चक्र समाप्त। मनोज कुमार ने हाथ उठाकर अपने विजय होने का संकेत दिया, भारत के पक्ष में होगा और ये आशानुरूप विजय भारत के पक्ष में और दर्शकों के हर्षोल्लास। And the big moment now, winning the gold medal, Manoj Kumar of India. Manoj Kumar, the gold medalist in the men's, winning the 5th gold medal for India. In fact, India has already secured the 6th as well through Mandeep Jangra. So almost on the verge of making a clean sweep of the gold medals. The Indian boxers doing extremely well. This is Manoj Kumar. This is the bout coming up. The men's middleweight 75 kilogram. Vikas Krishan against Ahmed Tanveer. 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा है। वहीं उनके पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है और ये पहला चक्र आरंभ हुआ। बड़ी फुर्ती के साथ लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लगाया विकास कृष्णन ने, बहुत ही धैर्य के साथ खेलते हुए। लेफ्ट राइट अगेन लेफ्ट राइट, बहुत ही अच्छा विकास लेफ्ट राइट स्ट्रेट पंच का अच्छा कॉम्बिनेशन फुटवर्क के साथ, बहुत ही अच्छी फुटवर्क के साथ अपनी पूरी बॉडी ले आगे ले जाते हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लगाया, बड़ी खूबसूरत स्वे बैक करके पुनः लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मारा। लेफ्ट हुक जैसी राइट क्रॉस मारने की कोशिश करी पाकिस्तानी मुक्केबाजों ने, लेफ्ट हुक मारा उन्होंने उसके चेहरे पर, स्वे बैक करके अपने को बचा। और तीसरा अंतिम चक्र समाप्त और दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए
और ये निर्णय विकास कृष्णन भारत के मुक्केबाज और दर्शकों के बीच काफी उत्साह, और ये विकास कृष्णन भारत के 7वां स्वर्ण भारत के पक्ष में। Very soon, the gold medalist in the middleweight 75 kilogram category, Vikas Krishan, and they made a clean sweep of the gold medals. What a wonderful achievement by India here in boxing at the 12th South Asian Games 2016. The games being co-hosted by Guwahati and Shillong, and this wonderful venue which has attracted so many. रेफरी की लंबी विसल के साथ मैच प्रारंभ। आक्रमण पर भारत। सुंदर तालमेल अच्छी तरीके से वे बनाती हुई राजवंत कौर ने रॉन्ग पास हुआ यहां पर, बॉल बांग्लादेश के पक्ष में। Very good attacking from the center. Well, the ball position with Rajwant right now, and Banita from the left wing. Again Rajwant from very far, a long shot. India is good shooters and Rajwant is specific for such kind of shots. 30 सेकंड का समय शेष और डबल किया डिफेंस को मनिंदर कौर। देखिए किस तरह से एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मनिंदर कौर और राजवंत कौर के बीच, बढ़िया पास और बढ़िया कन्वर्जन। 24-12 का स्कोर। इसी के साथ फर्स्ट हाफ की समाप्ति। फर्स्ट हाफ में 24-13 का स्कोर, एक अच्छा खासा अंतर यहाँ पर। सेकंड हाफ मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच। ये अटैक बांग्लादेश का। बॉल बांग्लादेश के पास। और दिली अख्तर बॉल को रिलीज करते हुए 6-0 का डिफेंस भारतीय टीम का। दलिया अख्तर प्लेमेकर की भूमिका में टीम को संचालित करती हुई, पर विविधता यह है कि लॉन्ग शूटर नहीं है उनके पास और इसलिए काउंटर का सामना करना पड़ेगा बार बार भारतीय टीम के द्वारा उनको। और शानदार प्रयास पुनः मनिंदर कौर के द्वारा, जंप शूट लॉन्ग, कहीं कोई गलती नहीं। शीला रॉय के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर के एंगल की तरफ मारा, बॉल को पूरा एंगल कवर किया। फिलहाल बॉल बांग्लादेश के पास। India can convert at least 2 goals because the second last minute, that's 29th minute of second half. Rajwant from the center, easy going, hitting the goalkeeper and getting into the net. Her ball has that force. Well, 3 defense, then goalkeeper and then goal. She's been extremely superb for the final match. बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय टीम स्वर्ण पदक के बहुत नजदीक है। इसी बीच कोशिश जरूर है दलिया अख्तर की, लेकिन भारत ने सही मायनों में ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। 29 में मात्र औपचारिकता बची है इस मैच की। 45 सेकंड्स का समय शेष है, जबकि मौका है बांग्लादेश के पास इस अंतर को कम करने का। दलिया का एक बार फिर बॉल पोजीशन देखना ये है, और इस बार लेफ्ट हैंड से एक गोल जरूर लिया, अंतर को जरूर कम किया बांग्लादेश की इस्मत आरा ने। 45 स्कोर है इस समय भारतीय टीम का। मात्र 10 सेकंड्स का समय शेष है, औपचारिकता शेष है स्वर्ण पदक के इस निर्णायक मैच की। और ये आक्रमण बांग्लादेश का, प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग, और ये कोशिश अंतिम क्षणों में दलिया अख्तर की, और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक भारतीय टीम ने जीता। Winner of the South Asian Games gold medal goes to Team India. Team India players, please come up to the ये वो podium. पल है जिसका हम सबको इंतजार था। And our guest of honor for this gold medal, भारत की टीम ने Mr. Ajit Singh, Minister of महिला Sports वर्ग का and Excise. हैंडबॉल का गोल्ड Presenting the मेडल medals. जीत 31
इस टाइम पर सबसे ऊंचा पद हासिल किया है। ये है भारतीय टीम। हैंडबॉल इवेंट का ये आखिरी मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच पुरुष वर्ग का इस 12th साउथ एशियन गेम्स में हैंडबॉल का ये आखिरी मैच खेला जाएगा। वेव बनाकर अंदर आने की कोशिश, दीपक और कन्वर्जन, दीपक ने वहां पे कन्वर्ट किया। सेंटर है दीपक, ये देखिए किस तरह से दो डिफेंसर्स, उसके बाद चिकाया उनको और फाइनली कोई सफलता नहीं मिली गोलकीपर ताहिर अली को रोक पाने में। एक एक की बराबरी, पाकिस्तान और भारत के बीच ये स्वर्ण पदक का मुकाबला। मेडल टैली में एक और गोल्ड डालने का मौका है भारत के पास। फिलहाल इस मुकाबले के ये शुरुआती क्षण, अपने इनिशियल फेज में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ आर्च राइवल्स और 2-1 का स्कोर। ग्रीनिच लेफ्ट बैक और सफलता हासिल की ग्रीनिच ने। काफी एक्सपीरियंस टीम भारत, वहीं पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन। और अपर्णा, इस खेल को फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कहा जाता है और ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में ये पूरी तरह से जस्टिफाई जरूर होगा। रेफरी अकरम के द्वारा ये जो इशारा में बोलते होगा, आक्रमण भारत के पास। वे स्पीड के साथ चलाते हुए बेहतर तालमेल, उतना ही इस प्रकार की एरर अपराध है हैंडबॉल में। अतुल रविंद्र बाबा के शिष्य हैं और रविंद्र बाबा और उलाडी। ये सेकंड हाफ पुरुष वर्ग का ये फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये दूसरे हाफ का मात्र 1 मिनट का खेल खेला जा चुका है। आक्रमण फिलहाल पाकिस्तान का, और यहां पहली कामयाबी मिली मुबीन को। ये 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के अंतर्गत पुरुष वर्ग का हैंडबॉल का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल का निर्णायक मुकाबला। We got to see whether India is going to continue with it or Pakistan will do some miracles. Well, a good defense as usual. Atul Kumar has been excellent. I think if today's match is won, the half the goals that he has saved, that could be the reason that India could get the goal. फिलहाल भारत 5 खिलाड़ियों के साथ है। एडवांटेज जरूर है पाकिस्तान को, लेकिन इस एडवांटेज के चलते भारत को संयम बरतना बहुत जरूरी है। बॉल पोजीशन भारत की, लेकिन पोजीशन अर्जित किया पाकिस्तान ने इन अंतिम क्षणों में। और ये देखिए एक बार फिर अतुल कुमार की सराहना करनी होगी। रिबाउंड और इस बार बॉल को रोका भारतीय टीम के मनप्रीत ने। मनप्रीत, अतुल, गजब का प्रदर्शन। मात्र 15 सेकंड्स है, इसे सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। और इस अंतिम 10 सेकंड के रहते एक और गोल लिया पाकिस्तान ने। Well, Sunita, this is the running time and it's just 5 seconds. I'm sure that India is going to keep the ball with them. There's no need of attempting. And true enough, with this gold medal by India for 12 South Asian Games, they could manage getting the revenge done, which they had lost in last South Asian Games. India still, the crowd, the officials, see the score on the screen for the final match. Winner of South Asian Games gold medal, India. I request Indian player please come to the podium and have guest of honor for the gold medal, Mr. N. Ramachandran, President Indian Olympic Association. तरीके से कब्जा जमाया, शुरुआत से ही दबदबा बरकरार रखा
और अपने आर्च राइवल्स को फाइनल मुकाबले में बहुत ही क्लोज एनकाउंटर में 32-31 के स्कोर के साथ शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। ये है भारतीय टीम और साथ में India will employ similar tactics that worked perfectly against Bangladesh when they went all out on the attack right from the outset and got their first corner as early as the 2nd minute. Bala Devi with jersey number 10 and Kamala Devi jersey number 9 all set to start proceedings, and we are off. Bala Devi looking for support from the right flank. She's getting it at the right flank. I'm sorry, NG Baladevi. NG Baladevi, a throw-in for India. The crowd roaring because the entire authority, control and dominance. That is a good one, and it's a goal. Coming in the 32nd minute of the game. 32nd minute of the game. India breaking the ice. What a goal that was. A long right footer in yours. We will show you in the slow motion just now. Absolutely. What audacity, arrogance and haughtiness shot by the Indian striker. So far, there were 9 attempts being made by India, and at the last, the 10th one. So getting now what looks like a little bit of danger as far as Nepal defense is concerned. Coming up to take that corner kick. It's looking like Sasmita. We'll know in a moment. It is Sasmita. Nicely taken kick. It's almost found Kamala Devi. And it's still danger. And a brilliant goal by Kamala Devi once again. It is such a brilliant performance by this girl. Kamala Devi it is, who scored the first goal in the 32nd minute. Nepal begin with a bang. Nepal, the pressure is on Nepal, the anxiety, the anguish, they just want to, but this is too much, and you can see the flag, the Indian flag, and the crowd, the women, the children, and everyone. It's very difficult to tell what type of experience those who are unable to make it to the Jawaharlal Nehru Stadium, Shillong. They are definitely watching on DD Sports Live. And to tell you more, it's over to my friend Sulen. सस्मिता मलिक का एक बार क्रॉस डी के अंदर खतरा बना हुआ और ये गोल, जबरदस्त गोल। सस्मिता मलिक ने जैसे ही क्रॉस किया था बाएं छोर से 10 नंबर में, और ये तीसरा गोल इंडिया के लिए जबरदस्त तरीके से। See, the tension is being very clear. This is a penalty being awarded. This is not a penalty. This is going to be the free kick. I would like to correct myself and all the defenders, and a very poor. Oh, there's a goal. 35th minute. The goal number 4. And this is the type of the football India is playing. Number 4 of India, that is Asalata Devi, scoring the goal number 4 for India. और भारत चैंपियन महिला वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का चैंपियन भारत एक बार फिर इतिहास दोहराता हुआ 4-0 की मजबूत बढ़त के साथ यह समाप्ति की घोषणा है इस मैच की। यह देखिए गले में गोल्ड मेडल, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गौरव वाला क्षण, कभी न भूलने वाला क्षण, यादगार क्षण ओ बिम बिम देवी के लिए, जिन्होंने आज स्वर्ण पदक देखिए हाथ। Gold medal for India, silver for Nepal, and bronze for Bangladesh. And there were one player who could not get the opportunity to play in the final was Dangmai Grace, though she was injured in the previous game against Bangladesh. But she really made some real excellent move, and her contribution cannot be left unturned. To tell you more, it's over. So that's the start. Nepal playing from the right to the left in all red.
gently being played around. Aditya Chaudhary. Man Bahadur Tamang with the left. My colleagues might bring some luck. Rajesh Tiwari and Anupam. इसी भारत का आत्मा दाहिने छोर से खूबसूरती के साथ उदान तक गिर पड़े और इसी के साथ सारा कर दिया पेनल्टी। निगाहें एक बार फिर नेपाल के गोल की तरफ। हाली ने दौड़ना शुरू किया, खूबसूरती के साथ प्लेस किया, गेंद गई गोल के अंदर और इसी के साथ भारत का पहला गोल। काफी खुश हैं हॉलीचरण जो कि यहाँ के स्थानीय है, लोकल लाइव है अनुपम, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट था पेनल्टी पर और इस तरह से सीधा जाके उन्होंने कोच ली जॉनसन की तरफ निगाहें। जॉनसन जो कि भारत के कोच हैं लगातार हिदायत दे रहे हैं, शायद वो भी समझ रहे हैं कि भारत के लिए खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि भारत स्पेस कर रहा है। इसी बीच अच्छा सेंटर है पेनल्टी सीमा के अंदर, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ नेपाली खिलाड़ियों ने उसे क्लियर किया और एक बार फिर नेपाल का आक्रमण, लेकिन गलत पास और इसी के साथ भारतीय खिलाड़ी से गेंद छीनी और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बाएं छोर से आक्रमण कर रहा है नेपाल काफी तेज गति के साथ। नेहमुन गुरुंग के पास गेंद उन्होंने सरका दी है विशाल रॉय की तरफ और गोलकीपर बाहर निकला, इसी बीच फाउल किया गया और इसी के साथ एक बार फिर फ्री किक। ये देखिए किस ढंग से वहां पर तेजी के साथ नेपाली खिलाड़ी अंजन बिस्टा निकले, उन्हें फाउल किया गया और जब उन्हें फाउल किया गया तो फ्री किक का नेपाल को। तो एक बार फिर मौका है नेपाल के लिए। Vishal Rai is there, takes the kick and what a kick it was. The Indians dumbfounded and it is Nepal who score and equalize. What a fantastic kick. None of the Indians in that defense line, neither the goalkeeper Renesh moved and it is a gem of a goal. So India won, Nepal won. और जैसे कि आप देख सकते हैं भारत आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों के पास गेंद, अच्छे से स्किल दिखाया, अच्छी स्क्रीनिंग है वहां पर, लेकिन एक बार फिर नेपाली खिलाड़ियों के पास गेंद एक बार फिर छीनी, कप्तान नारायण दास से गेंद छीनी और एक बार फिर नेपाल के पास आक्रमण और दाहिने छोर से इस बार आक्रमण है जो कि खतरनाक हो सकता है। हेमंत गुरुंग चल पड़े, एक खिलाड़ी को बीट किया लेकिन भारतीय रक्षक पंक्ति होशियार है और गेंद काफी पीछे आ गई। तो इस तरह से दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर, कभी नेपाल आक्रमण कर रहा है तो कभी भारत, लेकिन ज़्यादातर आक्रमण नेपाल के हो रहे हैं। बाएं छोर से उनके आक्रमण बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और बाएं छोर से भारत विफल। एक बार फिर मौका, ये खतरनाक करके और इसी के साथ गोल। तो ये नेपाल को वॉली करने का मौका मिला और जब भी वॉली करने का मौका मिलता है तो नेपाली खिलाड़ी नवदीप श्रेष्ठा को अगर आप जगह देंगे तो नवदीप श्रेष्ठा उस जगह का फायदा उठाएंगे जो कि आज उन्होंने किया। जैसे ही गेंद उन्हें मिली पहले चेस्ट ट्रैपिंग की और उसके पश्चात हाफ वॉली और गेंद गई गोल के अंदर, वो भारतीय गोलकीपर बीट हो गए थे। They know that hardly 2 minutes are there. They will also kick the ball wayward. Not allow the Indian forwards to come and go out. Just one also yesterday. Also collected very neatly by the goalkeeper. Hardly there was any punch in the. लेकिन नेपाली खिलाड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां तक स्वर्ण पदक का सवाल और इसी के साथ लंबी सीटी जो इस बात की तरफ इंगित करती है कि नेपाल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत का राष्ट्र हो गया है 2-1 से। जहां तक 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का सवाल, फुटबॉल का फाइनल आप देख रहे हैं जिसमें पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच। और जहां तक भारत की बात है तो पूरी तरह से अपराजित रहा है भारत और इसी के बीच ये बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड पाकिस्तान की तरफ से इस समय इब्रार हुसैन रेड पर गए हैं। टॉस जीता था पाकिस्तान के कप्तान ने और पहले रेड ली थी इब्रार हुसैन। ये पहला रेड पाकिस्तान की तरफ से 0-0 के मुकाबले पर अभी खेल शुरू ही हुआ है और देखना है कि पाकिस्तान की क्या रणनीति होती है, क्योंकि हमने देखा है कि रेडर्स पाकिस्तान के थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक हैं और तकनीक में भी दक्ष हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अगर कहा जाए कि ऑलराउंड भूमिका में नजर आए हैं। अनूप कुमार भारत के खिलाड़ी, रेडर, बहुत ही अनुभवी, 2 शॉट खेलने वाले भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में जो भाग ले रहे हैं उसमें एकमात्र खिलाड़ी और इन्होंने अपनी शुरुआत भी 2006 में दक्षिण एशियाई खेलों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में की थी। वहां पर आगे आकर ब्लॉक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अनूप कुमार को, लेकिन रेफरी परेरा, ये देखिए किस ढंग से
खूब ब्लॉक करने की कोशिश, अकेले ही थे, बहुत कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और ये अंक मिला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत को। और इस प्रकार 1 अंक की बढ़त इस समय हो गई, भारत 4 पाकिस्तान 3। 45 सेकंड का खेल बाकी है मध्यांतर के लिए। रोहित इस समय रेड पे, रोहित बिल्कुल राइट कॉर्नर पर, निसार उनकी ओर शिकंजा कसते हुए 2-2 के डिफेंस में पाकिस्तान की टीम। रोहित वहां पर बिल्कुल कॉर्नर की ओर, निसार की ओर लटके थे रोहित, और इस बीच यहां पर निसार कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल मिड लाइन पर किसी भी एंटी रेडर को पकड़ने के लिए ये खतरा मोल नहीं लेंगे। इब्रार इस समय रेड पर बकलाइन को टच किया, एक रेडर के लिए बकलाइन टच करना जरूरी। इब्रार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लगातार स्विच ओवर करते हुए 6 के डिफेंस में इस समय भारतीय टीम। इब्रार 2 एशियन गेम और 1 सैफ गेम खेल चुके हैं। इस बीच इब्रार वहां पर अनूप कुमार की ओर कोशिश की थी, और इसी के साथ पहला हाफ समाप्त 5-5 की बराबरी पर। इज अबाउट टू बिगिन। सरोज, जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, अनूप कुमार जो है कप्तान हैं और 2 एशियाई खेलों में खेलने का उनका तजुर्बा है और आज यहाँ दोहरी भूमिका में निभा रहे हैं। और जैसा कि अनूप कुमार ने यहाँ रणनीति में परिवर्तन किया था इस मुकाबले में, और यहाँ उन्होंने सुरेंद्र की जगह पर खुद कैचर की भी भूमिका निभाई है, और यहाँ रेडर के तौर पर 1 अंक भी उन्होंने अहम बटोरा था पहले हाफ में, लेकिन खाली हाथ लौटते हुए और बोनस लाइन जुटाने की कोशिश। 6 खिलाड़ियों की मौजूदगी में जब बोनस लाइन को छुआ जाता है, एक पांव ऊपर होता है हवा में, तो मिलता है 1 अंक। लेकिन यहाँ अबरार खान ने यह कोशिश की साउथ एशियन गेम्स 2010 में और एशियाई खेलों में 2006 और 2010 में भी शिरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, फैसलाबाद के नज़दीक जंग एक जगह है, वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। और 6-5 का स्कोर भारतीय टीम के पक्ष में, 1 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त। मैच पूरे शबाब पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला। सुकेश हेगड़े जो कि पिछले मैच के हीरो थे, यहां आए हैं रेड डालने के लिए। दोनों फ्लैंक्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 2-1-2 की रणनीति से खेलता हुआ पाकिस्तान, और यहां देखना है जो चेन उन्होंने बनाई है वो सुकेश हेगड़े पर कितनी हावी होती है और हो भी पाती है अथवा नहीं, क्योंकि सुकेश हेगड़े बहुत ही चुस्त हैं, मुस्तैद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा। केवल 50 सेकंड बाकी हैं इस मैच के। जी हां, धड़कनें बढ़ती हुई पाकिस्तानी खेमे की जैसे जैसे समय आगे बढ़ता हुआ, और भारतीय खिलाड़ी बहुत ही एहतियात बरतते हुए यहां पर प्रयास किया था अपनी लंबी रीच का, लेकिन अब वो लंबी रीच कहां से लाएं, उनकी उतनी ऊंची कदकाठी नहीं है जो अनूप कुमार जिसका फायदा उठाते हैं। जी हाँ, और समय गुजरता जा रहा है, क्लॉक में 27 सेकंड बाकी। लगातार कोशिश मोहम्मद निसार की, एशियन गेम्स में भाग ले चुके हैं, और दर्शकों का हुजूम, दर्शकों की आवाज आरजी बरुआ इंडोर स्टेडियम को गूंजायमान करते हुए पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है यह मुकाबला। अनूप कुमार भारतीय कप्तान रेड डालने के लिए। क्लॉक में आखिरी 7 सेकंड का समय बाकी, और यहां दर्शक अब रिकाउंटिंग करने लगे हैं। 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये मुकाबला पूरा हुआ। ऑफिशियल टाइम की घोषणा और ऑफिशियल विसिल के साथ इस बात का संकेत कि आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी में भारत ने पाकिस्तान को 7 के मुकाबले 9 अंकों से पराजित कर 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की पुरुष कबड्डी स्पर्धा का स्वर्ण पदक एक बार फिर से जीत लिया है। स्वर्ण पदक भारत के नाम पर 2010 में ढाका में भी स्वर्ण पदक जीता था। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की कबड्डी स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारत को। So what a day of sporting action we just witnessed. That was day 11 of the 12th South Asian Games, and 2 crackers of a contest we had. One was in the handball, Indian men defeating Pakistan by a solitary goal. The difference was just 1, that is 32-31, and Indian men again beating Pakistan in the kabaddi final by 2 points. Great matches there, and 2 more gold medals to India. And now, what does the medal tally tell you? As I already told you, it's of academic interest, and let's see what the medal tally suggests.
of course, you have watched the action of the penultimate day. So what's in store for us on the final day, that is the 16th of February? This is the schedule. We know that you have been following all the action live on the DD network as well as the highlights package, and in case you want to catch us on the social media, you can do that as well. If you want to follow us on Facebook, our Facebook ID is facebook.com/Doordarshan Sports. In case you want to follow us on Twitter, our Twitter handle is twitter.com/DD Sports India. And in case you want to catch us on YouTube, you can catch all the action. youtube.com/Doordarshan Sports. That was the penultimate day, and what a day it was. And hope you enjoyed the action as much as we enjoyed bringing it to you. Till we meet next time, take care. Goodbye.